First, read the question. Out of 100 students, total 100 students are there. 15 students pass in English, 12 students pass in maths, and 8 students pass in science. Done. Total 3 subjects are there: English, maths, and science. So out of 100 students, 15 pass in English, 12 pass in maths, 8 in science. Now 6 students are there who pass in English and maths both. 6 students pass in maths and English. 7 students pass in maths and science, and 4 students pass in English and science. And 4 students are there who pass in all the subject, pass in all 3 subject. Done. So here question is, how many students pass in English and maths but not in science? Second question, how many students pass in maths and science but not in English? Third question, how many students pass in maths only? And fourth question, how many students pass in more than one subject only? Done. So this is one word problem, this is one practical problem. We have to solve this question by using Venn diagram. तो देखो कैसे करते हैं. So here we are given total 3 sets, है ना? Set of students who pass in English, set of students who pass in maths, and set of students who pass in science. Total 3 sets are there. So let's define our 3 sets. First we'll consider set E. Set E. Set E is nothing but the number of students who pass in English. So set of students pass in English. Done. English के बेस पर रखा हमने E. Now another set, that is set M, for the students who pass in maths. So M is the set of students pass in maths. And third set, that is science, set of students, let's say it is S, set of students pass in science. Done. So here we are given that number of students, total 15 students pass in English. So total number of elements in set E, है ना? Number of students pass in English के अंदर कितने students pass हो रहे हैं? तो हमारा होगा number of elements in set E. So 15 students pass in English. So total number of elements in set E are 15. Now M is the set of students pass in maths. How many students pass in maths? 12 students pass in maths. So total number of elements in set M are 12, है ना? M क्या है? M is the set of students who pass in mathematics. In our question we are given that 12 students pass in maths. So total number of elements in set M are 12. अरे भाई P नहीं, N आएगा, N. Done. उसके बाद S, student pass in science. So total number of students pass in science. So total number of elements in set S. How many students are there who pass in science? 8 students pass in science. 8 students are pass in science. So 8. Done. Now आगे बढ़ो. Now 6 are there who pass in English and maths. इसका मतलब क्या हुआ? 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए एंड मैथ्स में भी पास हुए, दोनों में पास हुए. सो दोनों इंग्लिश एंड मैथ्स, दैट मींस 6 एलिमेंट्स और वी कैन से 6 स्टूडेंट्स आर कॉमन स्टूडेंट्स in set E and set M. Is the set of students pass in English and M is the set of students pass in maths. So these 6 students are common students between set E and set M, and therefore we can say total number of students which are common in set E and set M. Set E and set M. Number of students pass in English and maths, that is equal to 6. ये 6 आ गए. उसके बाद आगे बढ़ो. 7 in maths and science. So number of students who pass in maths as well as science. तो ये 7 स्टूडेंट कैसे है? कॉमन स्टूडेंट है, कॉमन बिटवीन मैथ्स एंड साइंस. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड साइंस, है ना? एंड के लिए दोनों में होना चाहिए तो इंटरसेक्शन आएगा. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमन बिटवीन मैथ्स एंड साइंस इक्वल टू कितने हैं? 7. 7 स्टूडेंट दोनों में कॉमन है. आगे बढ़ो.
फोर स्टूडेंट्स आर देयर विच आर कॉमन बिटवीन इंग्लिश एंड साइंस. इंग्लिश एंड साइंस दोनों में पास होने वाले 4 है. सो इट्स इंग्लिश इंटरसेक्शन साइंस, दैट इज इक्वल टू 4. एंड टोटल 4 स्टूडेंट्स आर देयर वो पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट. तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए है ना. टोटल 100 स्टूडेंट्स में से 4 ऐसे थे तो तीनों सब्जेक्ट में पास हो गए. तीनों सब्जेक्ट मींस इन मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश. So it's intersection of maths, science, intersection English, that is equal to 4 students. ऐसे 4 students थे. This is our given data. So from this given data, we have to answer this 4 question. है ना, ये हमारा क्वेश्चन था. अभी हम आंसर स्टार्ट करेंगे. Done. So for that, first we will try to draw Venn diagram. क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन हम Venn diagram से सोल्व करेंगे. फॉर्मूला यूज करके किया तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगा. So Venn diagram. So first we have to draw universal set. This is our universal set, and total 3 sets are there. है ना, maths, English and science. So let's say this is set. है ना, this is set of students who pass in maths. Then another circle, that is set of students who pass in science, and another circle, that is set of students who pass in English. So total 3 sets are there. This is for English. चलो पहले ये कर दिया. उसके बाद now here we can say total 1 2 3 4 5 6 7 areas are there. Total 7 different areas are there. So first we will denote the names. This is common area. This is A. This one is B. This one is C. This is D, E, F and G. Total 7 areas are there. A, B, C, D, E, F, G. Done. Now धीरे धीरे स्टार्ट करो. पहला एरिया, पहला. What about this area A? What is about this area A? Area A is the set of all the students which are common between maths, science and English. देखो तीनों के कॉमन आ गए. मैथ्स में भी पास हो गए, साइंस में भी पास हो गए और इंग्लिश में भी पास हो गए. वो जो सेट होगा वो होगा हमारा A, number of students A. Done. So what is A? So here A is nothing but the number of students which are common between maths, science and English. So that is already given. Number of students who pass in all 3 subject, that is equal to 4. Done. So here our A will be equal to 4. A will be 4. Understood? Now what about this area? This one. This is the common area between maths and science. It's a plus B. A plus B क्या होगा? A plus B is nothing but the number of students which are common between maths and science. Maths and science मतलब students who pass maths and science. है ना, ये maths में भी है देखो और ये science में भी है. So number of students who pass in maths and science. देखो इसमें कहाँ है maths and science? ये रहा maths and science. Number of students who pass in maths and science, that is equal to 7. That is maths intersection science, that is equal to 7. So A plus B is 7, where A is 4, which implies A is 4. So 4 plus B equal to 7. Hence we are getting value of B equal to 3. Done. A equal to 4, B equal to 3. है ना, धीरे धीरे सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे. देखो उसके बाद नेक्स्ट कॉमन एरिया कंसीडर करो. So that common area is कौन सा ले? कॉमन एरिया बिटवीन साइंस एंड इंग्लिश ले ले. चलो तो ये साइंस एंड इंग्लिश का कॉमन एरिया. साइंस एंड इंग्लिश का कॉमन एरिया. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A plus C. A plus C is nothing but the number of students who pass in science and English. So it's a number of students common between science intersection English. तो देखो साइंस एंड इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश एंड साइंस, 4 स्टूडेंट्स आर देयर. सो A plus C इक्वल टू 4. implies क्या होगा? A एंड C का एडिशन 4 हो रहा है जहां पर A की वैल्यू 4 है ना. 4 प्लस C इक्वल टू 4. तो यहाँ पर C आ गया 0. C आ गया 0. C आ गया 0. उसके बाद D, नेक्स्ट कॉमन एरिया कंसिडर करें ये वाला है ना, मैथ्स और इंग्लिश के बीच में कंसिडर करें. मैथ्स एंड इंग्लिश. सो मैथ्स एंड इंग्लिश
A plus D, that is equal to number of students which are common between मैथ्स एंड इंग्लिश। चलो मैथ्स एंड इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट्स, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश, मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स इंग्लिश, कहाँ गया, ये रहा मैथ्स इंग्लिश 6 स्टूडेंट्स। सो a प्लस डी इक्वल टू 6। इफ a प्लस डी इक्वल टू 6 है ना, ये दूसरा पार्ट है। इफ a प्लस डी इक्वल टू 6, a इक्वल टू 4, तो ये क्या होगा 4 प्लस d इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू आएगी बच्चों, क्या आएगी 2, d इक्वल टू 2। चलो ए बी सी डी धीरे धीरे आगे बढ़ो, ए बी सी डी। उसके बाद ये एरिया कंसीडर करो, सेट ऑफ एम। सो व्हाट इज एम, इट्स ए प्लस बी प्लस डी प्लस जी, ए प्लस बी प्लस है ना, ये ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी, जी प्लस डी। तो ये एरिया कौन सा हो गया, ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स है ना। चारों जो एरिया है ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स। मैथ्स वाले कहाँ है, देखो कहाँ गए मैथ्स वाले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स 12, सो दिस इज इक्वल टू 12। नाउ पुट दिस वैल्यू, ए हमारे पास ए है 4, सो ए इज 4 प्लस बी डिराइव किया 3, बी इज 3 प्लस जी नहीं पता है डी इज 2, दिस इज इक्वल टू 12, दिस इज इक्वल टू 12। तो एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो तो जी मिलेगा हमें। So our G is, what is G? 4 plus 3 7 plus 2 9, 12 minus 9, 12 minus 9 होता है 3, so G is 3। चलो G भी आ गया है ना। By same way we'll try to find this E and F। कहाँ पर फाइंड करें, यहाँ पर छोटी सी जगह बची है। so यहाँ पर A plus D plus C plus E, दूसरा कलर यूज करते हैं ना, तो मिक्सिंग नहीं होगा। A प्लस डी प्लस सी, ए प्लस डी प्लस सी प्लस ई, देखो चारों एरिया का एडिशन है ना, ए प्लस डी प्लस सी प्लस ई, देखो क्या हो रहा है ए प्लस डी प्लस सी प्लस ई, तो क्या आ गया, ये पूरा सर्कल आ गया, ये पूरा सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश कितने हैं 15, तो चारों एरिया का एडिशन 15 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 15। पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 4 प्लस डी इज 2 प्लस सी इज 0 प्लस ई इक्वल टू 15। तो यहां से हमें मिलेगी ई की वैल्यू 15 माइनस 4 प्लस 2 6, 15 माइनस 6, तो वो वैल्यू आ गई 9, ई इक्वल टू 9। डन, तो ये भी मिल गई। नाउ वी रिक्वायर एफ के लिए थोड़ा ऊपर चलते हैं है ना। सो व्हाट इज अबाउट दिस सेट, एस का एडिशन करें तो ए बी सी प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइंस मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन साइंस। साइंस में कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं 8, तो इसका एडिशन होगा 8। डन, वेयर ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3, सी इज 0 प्लस एफ, सी इज 0। डन, सो 4 प्लस 3 7, सो एफ आ गया हमारा 1, एफ आ गया हमारा 1। डन, सो हियर वी हैव फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ, ये फाइंड कर दिया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। वी हैव टू आंसर दिस 4 क्वेश्चंस, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को अभी मिटाएंगे। क्वेश्चन का यूज कर लिया हमें, तो इसको निकालो यहाँ से, है ना। यहाँ पर आंसर लिखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंग्लिश, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश एंड मैथ्स में, है ना, तो इंग्लिश एंड मैथ्स, देखो ये मैथ्स का सर्कल, ये इंग्लिश का सर्कल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस। तो इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में होना चाहिए, तो ये वाला एरिया वो इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों में, लेकिन साइंस में नहीं होना चाहिए, तो ए को आपको निगलेक्ट कर देना है। तो ये एरिया कौन सा, डी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स एंड साइंस, सॉरी मैथ्स एंड इंग्लिश, डी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स एंड इंग्लिश, है ना, बट नॉट इन साइंस। साइंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आएगा डी। तो फर्स्ट का आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश
and maths, English and maths, but not in science, not in science. That is equal to D. What is the D? D. कहाँ गया D? D is 2. So our answer is 2. Only 2 students are there who pass in maths and English, but not science. Clear? चलो एक और. फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स एंड साइंस. देखो मैथ्स एंड साइंस में पास होना चाहिए लेकिन इंग्लिश में नहीं, है ना. तो मैथ्स एंड साइंस में पास होने वाले, दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट कौन से? ए एंड बी दोनों. लेकिन इंग्लिश वाले नहीं चाहिए, तो इंग्लिश वाले ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आंसर मिलेगा बी. बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन, है ना. ये एरिया ऐसा है कि जो सिर्फ मैथ्स एंड साइंस के बीच में कॉमन है. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, that is equal to B. So how many students are there? Only 3 students are there who pass in maths and science but not in English. Clear? Now third one. Find number of students who pass in maths only. सिर्फ मैथ्स में पास होने चाहिए, इंग्लिश में भी नहीं, साइंस में भी नहीं. तो देखो ये सारे बच्चे जी वाले वो सारे ऐसे बच्चे हैं वो सिर्फ मैथ्स में पास है, वो इंग्लिश में भी साइंस में भी पास नहीं है और इंग्लिश में भी पास नहीं है. ये सिर्फ इतने एरिया में आएंगे, तो वो होगा जी हमारा. So G is the number of students who pass in only maths, सिर्फ maths 3 students. Only 3 students are there who pass in only maths. Done? और last one, question number 4 का आंसर. Find number of students who pass in more than one subject only. More than one subject में पास होने चाहिए, है ना. More than one subject means एक से ज्यादा मतलब देखो एक में पास होना है. जी इज द स्टूडेंट हु पास इन ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स में पास हुए, एक ही सब्जेक्ट में पास हुए, तो वो नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए. ई मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, तो वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं चाहिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन साइंस, तो वो एफ भी नहीं चाहिए. एक से ज्यादा, दैट मींस मैथ्स या साइंस में या फिर मैथ्स इंग्लिश में या फिर इंग्लिश एसएस में या फिर तीनों में पास होने चाहिए. तो वो स्टूडेंट्स कौन से? ए बी सी डी. दैट स्टूडेंट्स आर नथिंग बट दी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना. उसमें से ए जो है वो तीनों सब्जेक्ट में पास हो गया है और बी सी डी है वो दो सब्जेक्ट में पास हुए, वैसे स्टूडेंट है. तो हियर वी आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मोर देन वन सब्जेक्ट. ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लगाओ. चलो ए इज 4, बी इज 3, सी इज 0 एंड डी इज 2. So here 4 plus 3 7 plus 2 9 students are there who pass in more than one subject. Clear students? So this is how we can solve this type of questions by using Venn diagram. Question same as previous question. So here question के साथ diagram ड्रॉ करेंगे. In a group of 50 students, number of students studying French, English, Sanskrit were found to be as follow. So number of students studying French, है ना. So here total number of students are given. Total number of students. So that is our set of universal set. Total 50 students are there. Number of students who studying French. French पढ़ने वाले. So number of students studying French, इसको हम set F बोल दे. So total number of students studying French are 17. Number of students studying English पढ़ने वाले. So number of students studying English are 13. Number of students studying Sanskrit, French, English, Sanskrit पढ़ने वाले 15 students are there. Now number of students studying French and English, दोनों पढ़ने वाले, French and English. So F intersection E, है ना. ये तो समझ में आया ना. French and English दोनों में common, so it's an intersection. Number of students studying French and English is equal to 9. Number of students studying English and Sanskrit, English intersection Sanskrit, English and Sanskrit are 4. Number of students studying French and Sanskrit, that is equal to 5, है ना. दो पढ़ने वाले ये, एक पढ़ने वाले ये, टोटल ये, और उसके बाद तीनों पढ़ने वाले. लास्ट क्वेश्चन जैसे हो गया इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत, तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है परम भाग्यशाली वो है 3. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3. So here find the number of students and so many questions. First question is find number of students who study French only.
है ना। लाइकवाइज आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडी इंग्लिश ओनली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत ओनली। जैसे 3 क्वेश्चन आ गए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, नॉट फ्रेंच। इसका क्या मतलब हुआ, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली 2 सब्जेक्ट, है ना। इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ रहे हैं तो फ्रेंच नहीं, संस्कृत एंड फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश नहीं, एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो संस्कृत नहीं। दैट मींस यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ओनली 2 सब्जेक्ट। तो ऐसे 3 क्वेश्चन है, डन। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स studying at least one of the 3 language, है ना, at least one language। ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है कि जो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पढ़ रहा हो। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आगे है, और वो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग नॉन ऑफ द 3 लैंग्वेज, नॉन ऑफ द 3 लैंग्वेज। कुछ पढ़ नहीं रहा है ना, लिखाई पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स का आपको नंबर निकालना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझ में आ गया। वी आर गिवन टोटल 50 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स 70 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग ओनली फ्रेंच, स्टडिंग फ्रेंच नॉट ओनली, 30 स्टूडेंट्स आर देयर स्टडिंग इंग्लिश, 15 स्टूडेंट्स आर देयर स्टडिंग संस्कृत, टोटल 9 स्टूडेंट्स आर देयर स्टडिंग फ्रेंच एंड इंग्लिश, टोटल 4 स्टूडेंट्स आर देयर स्टडिंग इंग्लिश एंड संस्कृत, total 5 students are there studying French and Sanskrit, and total 3 students are there who study all 3 languages. So here question is find the number of students who study French only, find the number of students who study English only, find the number of students who study Sanskrit only. उसके बाद number of students who study only 2 language, उसके बाद at least 1 language, और उसके बाद question है none of the 3 language, एक भी language नहीं पढ़ रहे, उतने स्टूडेंट्स का आपको नंबर निकालना है। डन। तो चलो पहले ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, सो फॉर दैट वी रिक्वायर वन यूनिवर्सल सेट। सो दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट U। टोटल 3 सेट्स आर देयर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास फ्रेंच है, इंग्लिश है और साइंस है। तो 3 सर्कल आएंगे। सपोज दिस इज द सर्कल फॉर फ्रेंच, दिस वन इज फॉर इंग्लिश, येलो वाले सब इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश। और उसके बाद एक और सर्कल लगा देते हैं, दैट इज फॉर संस्कृत, दिस इज फॉर दी संस्कृत। ये आ गया संस्कृत का सेट। डन। उसके बाद मैंने बोला था आपको, है ना, हर एक एरिया को नाम दे दो। सपोज दिस इज A, दिस इज B, C, D, E, F, G। डन। चलो आगे बढ़े। उसके बाद क्या करना है, डेटा को यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सेंटर एरिया, है ना। ए आप देख रहे हो, ए इज द एरिया कॉमन बिटवीन दिस पिंक, ग्रीन एंड येलो लाइन। तो ये एरिया सारे तीनों सेट के बीच में कॉमन आ रहा है। सो ए इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु स्टडी। देखो ए है ना, वो फ्रेंच में भी आ रहा है, ये इंग्लिश में भी आ रहा है, और ये जो संस्कृत में भी आ रहा है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल 3 लैंग्वेज, फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। तीनों सेट का कॉमन पार्ट मींस वो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना। तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट है, 3। तो यहाँ पर हमें पहला मिल गया A, और A इज 3, A इज इक्वल टू 3। सिंपल। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ऐसा एरिया कंसीडर करेंगे जो दो सेट के बीच में कॉमन है। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, सिर्फ इतना एरिया कंसीडर करो। तो आप देख पा रहे हो, है ना, कि ये जो एरिया है वो सेट F एंड E के बीच में कॉमन है। तो वो है A प्लस बी। सो A प्लस बी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन बिटवीन 2 सेट F एंड E। So number of elements common between F and E, that is number of students studying French and English, that is equal to 9. So A plus B 9 आ गया, और A हमारा 3 है। So 3 plus B equal to 9 implies we'll get B equal to 6. B की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स। 1 by 1 सारे वैल्यू निकालेंगे। देखो A आ गया, B आ गया। उसके बाद ये वाला कॉमन एरिया कंसीडर करें, that is the common area between 2 सेट। कौन से,
फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच और संस्कृत के बीच में कॉमन एरिया है, सो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, ए प्लस सी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन बिटवीन फ्रेंच एंड संस्कृत, फ्रेंच एंड संस्कृत के बीच में कॉमन, फ्रेंच एंड संस्कृत के बीच में कॉमन कितने हैं, 5, फ्रेंच और संस्कृत के बीच में कॉमन कितने हैं, फ्रेंच और संस्कृत के बीच में 5 स्टूडेंट कॉमन है, दैट मीन्स 5 स्टूडेंट फ्रेंच एंड संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं, सो ए प्लस सी इक्वल टू 5 और ए हमारा 3 है, सो 3 प्लस सी इक्वल टू 5 implies c इक्वल टू 2, देखो c 2 आ गया, a is 3, b is 6, अभी c आ गया, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ d, d के लिए बच्चों कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे, दो सेट के बीच में कॉमन एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया बिटवीन इंग्लिश एंड संस्कृत, सो a plus d equal to number of students common between English and Sanskrit, English and Sanskrit, so how many students are there common between English and Sanskrit, 4, so a plus d, a is 3 plus d equal to 4, therefore d equal to 1, d is 1, now consider this set f, so it's a plus b plus c plus e plus e, that is equal to number of elements in set f, number of elements in set f are 17, है ना, ये पूरा हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडिंग फ्रेंच, a प्लस b प्लस c प्लस e, सारे बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो a कितना 3, a is 3, b is 6, c is 2, so here we are getting e, that is equal to 17, 3 plus 6 9 plus 2 11, so e equal to 17 minus 11 6, e की वैल्यू 6 आ गई, डन। उसके बाद s कंसिडर करें तो वो होगा a प्लस c प्लस d प्लस g इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत 15 है, 15, सो दिस इज इक्वल टू 15, चलो a कितना 3, c 2, d 1, तो मिलेगा g 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 15 माइनस 6, g इक्वल टू 9, g मिल गया। उसके बाद क्या चाहिए f की बात करें तो a प्लस b प्लस d प्लस f, a प्लस b प्लस d प्लस f इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e, सो a प्लस b प्लस d प्लस f इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन e, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, 13 स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा 13, चलो a is 3, b is 6 plus d is 1 plus f equal to 13, so 3 plus 6 9 plus 1 10, so f equal to 13 minus 10 3, f हो गया 3, तो सारी वैल्यू मिल गई, देखो a b c d e f g, बस उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्वेश्चन पर फोकस करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच ओनली, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच ओनली, तो फ्रेंच ओनली का मतलब क्या हुआ, सिर्फ फ्रेंच पढ़ते होंगे, है ना, इंग्लिश भी नहीं संस्कृत भी नहीं, तो वेन डायग्राम पर जो यहाँ पर वेन डायग्राम आपको दिख रहा है कि फ्रेंच पढ़ने वाले ये सारे स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे हैं, उसमें से ए वैसे स्टूडेंट है वो फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट है वो फ्रेंच के साथ साथ सिर्फ इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, सी वाले ऐसे स्टूडेंट है वो फ्रेंच के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो ई है वो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच ओनली दैट इज इक्वल टू ई, और हमारा आंसर आएगा ई, कहां पर है ई, ये रहा ई, 6 स्टूडेंट्स, ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर वो स्टडिंग फ्रेंच ओनली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली वाले कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश ओनली, तो देख सकते हो यहाँ पर एफ है ना, एफ इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडिंग इंग्लिश ओनली, तो एफ कहाँ गया, एफ ओनली 3 स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग संस्कृत ओनली, so that is s, sorry that is equal to g, so number of students studying संस्कृत ओनली g, तो वो हो गए 9, डन। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, देखो इंग्लिश के कॉमन है और ये संस्कृत के कॉमन है, लेकिन फ्रेंच नहीं आने चाहिए, तो आएगा सिर्फ डी, सो डी इज द आंसर,
D is the number of students who studying English and Sanskrit only, but not French. तो वो हो गया D, और D is 1. Only one student is there who studying English and Sanskrit, but not French. Same way, number of students who studying French and Sanskrit, दोनों पढ़ रहे हो लेकिन नॉट इंग्लिश, तो एक को रिमूव कर देना है, तो आंसर आएगा सी. सी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच एंड संस्कृत, है ना, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो दैट इज इक्वल टू सी, और सी इज 2. डन. 6th क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, तो वो होगा बी. बी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, तो बी का आंसर आएगा 6. डन. Okay students, now question number 7. Here we have to find number of students studying at least one language. Number of students study at least one. So how many students are there who studying at least one language? That means one language भी हो सकती है. It may study 2 languages. Student can study 3 languages also. Done. So here students studying at least one language, so all these students are there. That is, it's the sum of A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. These are the students who study at least one language. So what is the sum of all these numbers? 3 plus 6 plus 2 plus 1 plus 6 plus 3 plus 9. 3 plus 6, 9, 11, 12, 18, 21 and 20. So total 20 students are there who study at least one language. Done. And then last question number 8. Here we have to find number of students studying none of these 3 languages. Number of students studying none of the language. So here total number of students are 50. Out of 50, 20 students are there who study at least one language. So remaining students are the students studying none of the language. So it's a 50. Total 50 students are there, out of which 20 students studying at least one language. So remaining students are 30 students are the number of students who does not study any of the 3 languages. Clear students? So this is how we can solve these numericals based on practical problem by using Venn diagram.